Hello friends, good morning everyone. This is Mukesh Kumar Bharti. Welcome to my channel Mukesh English Academy. Friends, as we have studied in the last class uses of verb to be, the present form, past form and future form. So friends, today we will study the types of sentences. Okay, so there is a first type of sentences I have taught you in the last class, positive sentences. Okay, positive sentences, that means assertive sentences, affirmative sentences, that is called positive sentences. The structure of positive sentences is subject, then after is helping verb, then after adjective. So first of all we have to use subject to make sentence, then after according to subject we have to use verb, then after you have to use adjective. This is the structure formula of positive sentences of verb to be. Okay, so there are some examples here of present tense positive sentences. See here, I am diligent, I am innocent, he is violous, Resmi is selfish, Rupa is faithful, you are oblivious, and you are incomparable. Okay, the first type of sentence is positive and the second type of sentences is negative. So we have to make negative sentences. How will make negative sentences? See the structure formula here. So first of all we have to use subject, then after helping verb, that means is MR. According to subject we have to select a helping verb, then after we have to add not to make negative sentences, then after we have to add adjective in the structure. As you can see on the board, subject, then after is MR plus negative, negative means not, then after adjective. Here are some examples. I am not diligent, they are not helpful, you are not courageous, you are not a good student. So these all are negative sentences. Then after, the third type of sentences is interrogative sentences. How will make interrogative sentences? I will make the structure of interrogative sentences. See here on the board. First of all we have to use helping verb, means is MR. First of all we'll have to use is MR, then after subject, then after adjective, then after the last of the structure we have to use sign of interrogative. Okay, there are some examples. See here, are you faithful? Okay, are you faithful? Are you courageous? Are you diligent? Are you innocent? Are you Bibulous? Okay, the four types of sentences are negative, interrogative plus negative. That means the sentences will be interrogative and negative too. Okay, the structure formula is MR. That means first of all we have to use helping verb, then after subject, then after not, then after adjective, then after sign of interrogative. According to this structure, I have written here some examples. As you can see on the board, are you not faithful? Are you not good boy? Are you not intelligent? Are you not Bibulous? Are you not a teacher? Are you not a student? So these all are the sentences of interrogative, negative. And the fifth type of sentence, the fifth types of sentences are WH word. Means we have to make sentences using WH word. Where we will use WH word? First of all, we have to use WH word, then after helping word, then after subject, then after adjective, and at the last of the structure we have to use sign of interrogative. Repeat, WH word plus his MR plus subject plus adjective plus question mark. That means sign of interrogative. So according to a structure we have to translate into English like why. See here, WH word is here. So in 9 WH word we have to use anything else, so why. First I have used here WH word why. Then after helping verb is MR, I have used here are, then after subject is you here, and adjective is faithful. So why are you faithful, right? Why are you faithful? Why are you diligent? Why are you innocent? Why are you Bibulous? Why are you selfish? Why are you faithful? Why are you oblivious? That means I have taught you today positive sentences, negative sentences, interrogative plus negative sentences, and WH word plus interrogative, WH word plus interrogative plus negative sentences. That means I have taught you 6 types of sentences here today. So just I give you one example of sentence verb to be in the present form. Just like I am speaking here, I am a teacher. How to make into negative? I am a teacher. In the negative form it will be I am not a teacher. In the interrogative form it will be am I
I a teacher? In the interrogative plus negative, what will be here? Am I not a teacher, or ain't I a teacher? And WH word, why am I a teacher? And WH word plus negative, why am I a teacher? Just 6 sentences I have just repeated here. For example, she is an actress. She is an actress. Make it into 6 sentences. Make these sentences like 6 sentences. How will you make? She is an actress. She isn't an actress. Is she is an actress? Isn't she an actress? Why is she an actress? And why isn't she an actress? Okay, you are a teacher. You are a teacher. You are not a teacher. Are you a teacher? Aren't you a teacher? Why are you a teacher? Why aren't you a teacher? So friends, आज हम सीखेंगे, जैसे कि मैंने पिछला क्लास में पढ़ाया था आप लोग को, वर्ब टू बी का यूज प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में एंड फ्यूचर फॉर्म में। आप लोग को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस सिखाए थे, मतलब एक प्रकार का सेंटेंस आप लोग को हम सिखाए थे लास्ट क्लास में कि कैसे हम आई थिंक फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको हम बताए थे। मैं जैसे मान लीजिए कि वह एक किसान है, ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंसेस हम लोग पहला क्लास में सीखे। वह एक किसान है तो क्या होगा? ही इज ए फार्मर, ठीक है। लेकिन देखिए हम लोग कितना प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, WH वर्ड कैसे बनाएंगे, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हम सीखेंगे यहाँ पे। तो पहला हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हूँ। मैं मेहनती हूँ, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं मेहनती हूँ, मैं का इंग्लिश क्या होता है? ठीक है, आई, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो क्या यूज होगा? एम। आई के बाद क्या होता है? एम। उसके बाद क्या है? मेहनती। मेहनती का इंग्लिश होता है डिलिजेंट। क्या होगा? आई एम डिलिजेंट, ठीक है। मैं निर्दोष हूं, आई एम इनोसेंट। वह पियक्कड़ है, ही इज बाइबलस। रेशमी मतलब ही है, रेशमी इज सेल्फिश। रूपा वफादार है, रूपा इज फेथफुल। तुम भुलक्कड़ हो, यू आर ऑब्लिवियस। आप बेमिसाल हो, यू आर इनकम्पेरेबल। ये जो सेंटेंस है हमारा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और अब मान लीजिए इसको हमको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, इसी को हमको नेगेटिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे मैं मेहनती नहीं हूं, वह टीचर नहीं है, वह शिक्षक नहीं है, वह नृत्यकार नहीं है। यानी कि सारा सेंटेंस जो हमारा पॉजिटिव में है, इसको नेगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे? तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट को ऐड करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा। जैसे यही सेम सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? पहला स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट EJMR प्लस नॉट। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद EJMR, उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे। नॉट हम यूज करेंगे तो ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है मैं मेहनती नहीं हूं, तो क्या होगा? आई एम नॉट डिलिजेंट। इसको शॉर्टकट में भी आप बोल सकते हैं एम, और नॉट को साथ में बोल सकते हैं एंट। क्या बोलेंगे? आई एंट डिलिजेंट। दे आर नॉट हेल्पफुल। देखिए आर और नॉट है, इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं आरंट, ठीक है। दे आरंट हेल्पफुल। ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजेंट एंट आरंट प्लस एडजेक्टिव। यानी कि जो नॉट है इसको आप इसी में हेल्पिंग वर्ब में ऐड करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट डिलिजेंट, आई एम नॉट इनोसेंट, ही इज नॉट बाइबलस, रेशमी इज नॉट सेल्फिश, रूपा इज नॉट फेथफुल, यू आर नॉट ऑब्लिवियस, यू आर नॉट इनकम्पेरेबल। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हुआ जिसमें आप आंसर दे सकते हैं यस और नो कहकर, ठीक है। चलिए एग्जांपल आते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारा कैसा है? देखिए EJMR हम पहले यूज करेंगे, उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हम एडजेक्टिव को यूज करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जनरली इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है आर यू फेथफुल, क्या आप वफादार हैं? इसका आंसर आप दे सकते हैं यस और नो में, ठीक है। क्या आप वफादार हैं? हाँ मैं वफादार हूँ, नहीं मैं वफादार नहीं हूँ। यानी कि आप यस और नो में इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? आर यू फेथफुल, आप आंसर कैसे देंगे? यस आई एम फेथफुल, नो
आई एंट फेथफुल, आई एम नॉट फेथफुल। ठीक है, यानी कि यस और नो में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये फर्स्ट प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपका है। तो कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आप वफादार हो, आर यू फेथफुल। ठीक है, क्या आप मेहनती हो, आर यू डिलिजेंट। क्या आप पियक्कड़ हो, आर यू बैबलस। यानी कि फर्स्ट आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है। अब हम इंट्रोगेटिव को भी नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट ऐड करके इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। और अगर आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी यूज करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, अच्छा ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, देखिए अब इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इज एम आर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इजेंट। देखिए ये जो नॉट जो है ना सब्जेक्ट के बाद भी हम यूज कर सकते हैं और पहले भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में भी आप ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे इजेंट, इज में नॉट ऐड करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म क्या होगा इजेंट, एम में नॉट को ऐड करेंगे तो क्या होगा एंट, और आर में नॉट को ऐड करेंगे तो क्या होगा आरंट। यानी कि इसका स्ट्रक्चर सेकंड आपका होगा इजेंट एमेंट, इजेंट एंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए क्या आप वफादार नहीं हो, इसका भी आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। हाँ यस, ठीक है, यस आई एम नॉट फेथफुल, नो आई एम फेथफुल। यानी कि यस नो में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम WH वर्ड को ऐड करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो सेकंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम WH वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इज एम आर यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए एक एग्जाम्पल है, आप वफादार क्यों हो, या फिर आप वफादार क्यों हैं। देखिए इसमें WH वर्ड है ना क्यों, तो देखिए अगर किसी भी सेंटेंसेस में WH वर्ड होगा तो सबसे पहले हम WH वर्ड को ही बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो इसमें क्यों है ना, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है WH वर्ड में वाई। ठीक है, देखिए तो WH ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्ट्रक्चर उसके अनुसार हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। WH वर्ड पहले है तो WH वर्ड यानी कि इसमें क्यों है WH वर्ड, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो देखिए इज एम आर आप सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा है आप यानी कि यू है, तो यू में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो क्या होगा वाई आर यू फेथफुल, आप वफादार क्यों हो। ठीक है, वाई आर यू फेथफुल। तो ये हो गया सेकेंड टाइप का आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। और देखिए इसको भी आप नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, तो WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यानी कि नेगेटिव में बनाने के लिए सेंटेंस को आप सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो हेल्पिंग वर्ब में भी ऐड करके आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट में भी आप बोल सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर है, देखिए क्या है, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं, WH वर्ड प्लस इजंट एंड आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। आप नॉट दोनों जगह यूज नहीं कर सकते, चाहे तो आप सब्जेक्ट के बाद यूज करिए और चाहे तो आप हेल्पिंग वर्ब में ऐड करके यूज कीजिए। तो एक एग्जांपल है, आप वफादार क्यों नहीं हैं, तो कैसे होगा, सबसे पहले क्यों यानी कि वाई आर यू नॉट फेथफुल। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो नॉट है इसको आप हेल्पिंग वर्ब में भी ऐड करके बना सकते हैं। जैसे वाई आर यू नॉट फेथफुल, आप ऐसे बना सकते हैं वाई आरंट यू फेथफुल। तो फ्रेंड्स इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं मिटाता हूँ और फिर हम लोग एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, यही सब स्ट्रक्चर को यूज करके हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, so I'm going to erase the board right now and we are going to do practice of verb to be, the present form of verb to be is MR. जिसे इंग्लिश में दिक्कत है वो हम मुझे बोलेंगे, हम इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे, हिंदी को यूज करके
और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। सीबीएसई स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़े हैं उसको कोई दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश में समझने के लिए, बट जो ग्रामीण से हैं, जो गांव से है, उसे दिक्कत होगी, इसीलिए मैं बीच बीच में हिंदी बोलता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं, देखिए प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी को यूज करके एक हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जैसे कि वह एक डॉक्टर है, कैसे होगा, सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो इंग्लिश में कैसे हम बोलते हैं, सी इज अ डॉक्टर। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप 6 सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इज में नॉट को ऐड करना है, तो कैसे होगा, सी इज नॉट अ डॉक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं सी इजंट अ डॉक्टर, सी इज नॉट अ डॉक्टर, ये आपका हो गया नेगेटिव। अब आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप जो हेल्पिंग वर्ब उसको पहले यूज करते हैं। क्या वह एक डॉक्टर है, तो आपका यूज क्या होगा, इज सी अ डॉक्टर, इज सी अ डॉक्टर, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि आप जब नेगेटिव में कोई सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आप नोट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब में भी नोट ऐड करके बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं, इज सी नॉट अ डॉक्टर, इज सी नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा, WH वर्ड को यूज करके हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए क्या वह डॉक्टर नहीं है, ये हो गया, वह डॉक्टर क्यों नहीं है, तो वह डॉक्टर क्यों है, और वह डॉक्टर कहाँ है, तो कैसे बोलेंगे, वह डॉक्टर कहाँ है, तो वेयर इज सी अ डॉक्टर। नेक्स्ट बनेगा आपका, इसको नेगेटिव मेंशन कैसे करेंगे, वेयर इज सी नॉट अ डॉक्टर, वेयर इज सी नॉट अ डॉक्टर, वेयर इज सी नॉट अ डॉक्टर। देखिए एक सेंटेंस को हम कितना सेंटेंस बना दिए यूज करके, चेंज कैसे करें। ये आपका है पॉजिटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये है WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव, ये है WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि 1 का 6 है। वह डॉक्टर है, सी इज अ डॉक्टर, सी इजंट डॉक्टर, इज सी अ डॉक्टर, इजंट सी अ डॉक्टर, वेयर इज सी अ डॉक्टर, वेयर इजंट सी अ डॉक्टर। इसका 6 का हिंदी में बोलता हूँ, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर नहीं है, क्या वह एक डॉक्टर है, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है, वह कहाँ एक डॉक्टर है, वह कहाँ एक डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो एक सेंटेंस का आप 6 बना सकते हैं। मान लीजिए आप बोलते हैं वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है, यानी कि ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, तो इसको हम 6 कैसे बनाएंगे, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, इज ही अ स्टूडेंट, इजंट ही अ स्टूडेंट, व्हाई इज ही अ स्टूडेंट, व्हाई इजंट ही अ स्टूडेंट। देखिए WH वर्ड में आप कोई भी WH वर्ड यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, बट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी WH वर्ड, यानी कि 9 WH वर्ड हमारे पास है, वो 9 का 9 कोई भी यूज करेंगे, लेकिन उसका मीनिंग आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए बात क्या है ना, कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो तरह तरह का, आप पहले हिंदी जब बोलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी में आप सोचते हैं और हिंदी में बोलते हैं, बट आप इंग्लिश जब बोलना चाहते हैं तो आपको बहुत परेशानी होती है। कैसे परेशानी होती है, पहले आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप इंग्लिश बोलते हैं, तो प्रोसेस लगता है, तो थोड़ा टाइम लगता है ना, इसीलिए हम स्ट्रक्चर सीखते हैं। देखिए आप अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तो आप तुरंत बोल देते हैं माय नेम इज, आपका जो भी नाम होगा, माय नेम इज ABC, तुरंत बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इस प्रकार का सेंटेंस आप बहुत बार बोले हैं, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर वाली सेंटेंस आप बहुत बार बोले हैं। तो इससे स्वाभाविक क्या है कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर का सेंटेंस, जिस प्रकार का फॉर्मूला का सेंटेंस आप पहले बना चुके हैं, उस प्रकार का इंग्लिश का सेंटेंस आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या, स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत है, फॉर्मूला सीखने की ज़रूरत है, तब हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इंग्लिश बोलने में, ठीक है। हम बोलते हैं कि तुम्हारा भाई चोर है, तुम्हारा भाई चोर है, कैसे होगा, योर ब्रदर इज थीफ, ठीक है। इसको हम 6 सेंटेंस तुरंत बनाइए 6 सेंटेंस में, कैसे होगा, योर ब्रदर इज अ थीफ, योर ब्रदर इजंट अ थीफ, इज योर ब्रदर थीफ, इजंट योर ब्रदर थीफ, व्हाई इज योर ब्रदर थीफ, व्हाई इजंट योर ब्रदर थीफ। यानी कि 1 का 6 सेंटेंस आपको बनाना है और पूरा प्रैक्टिस करना है। अगर आपके घर में मिरर है तो मिरर के सामने आप खड़ा हो जाइए एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस।
और बहुत सारा प्रैक्टिस आप कीजिए इंग्लिश में बोलने का, तो यकीनन यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ओके, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट इमेजिन टू हाउ टू स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भूल जाइए, आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू नेवर कैन स्पीक इंग्लिश। इफ यू डू प्रैक्टिस, डेफिनेटली यू कैन बी अ स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, you can speak English with anyone, you can talk in English with anyone। तो एक चीज़ तो पक्का है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी इंग्लिश बोल पाएंगे। इंग्लिश लिखने में और इंग्लिश बोलने में बहुत फार डिफरेंस है, बहुत मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केवल लिखने से काम नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। What I teach every day to you, you have to do a lot of practice. You never write it in your copy and you just throw it at the corner of the room। हमको लगता है कि अगर आप लोग में से बहुत सारे लोग करते होंगे कि इसको कॉपी में लिखते हैं और अपने घर के कोने में कॉपी को फेंक देते हैं। यू नेवर डू प्रैक्टिस, देन यू कांट इमेजिन टू स्पीक इंग्लिश, यू कांट इमेजिन टू स्पीक इंग्लिश, यू कांट इमेजिन टू टॉक इंग्लिश, यू कांट इमेजिन टू स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश। आप एक सेंटेंस भी इंग्लिश का नहीं बोल पाएंगे। तो एक चीज माइंड में नोट कर लीजिए, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, वेदर रॉन्ग और राइट डजंट मैटर। यू डोंट हैव टू डू अदर थिंग्स, प्रैक्टिस व्हाट आई टीच टू यू एवरी डे ऑन द बोर्ड, यू हैव टू डू द सेम प्रैक्टिस एवरी डे, देन आफ्टर यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कैन स्पीक इंग्लिश without facing any problem. If you face any problem, then you can write your problem in my comment. I will definitely reply to you, then after I will sort out your problem. So guys, आज हम समझते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में आप अपना समस्या जो भी है वो लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई भी परेशानी आपका नहीं होगा। तो ये प्रेजेंट टेंस था आपका, ये प्रेजेंट फॉर्म था वर्ब टू बी का, ठीक है। अब इसी को आप पास्ट में ले लीजिए, ठीक है। पास्ट में क्या था, वाज वर था, ठीक है। अब वाज वर है तो वाज वर देखिए स्ट्रक्चर सब सेम होगा, केवल जहां हम यूज किए थे ईजेएमआर वहां पे क्या हो जाएगा, वाज वर। और अगर उसको हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो जहां हम यूज किए थे ईजेएमआर वहां पे शैल बी और विल बी हो जाएगा। सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, सारा का सारा। मान लीजिए अभी हम वर्ब टू बी को पास्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे, यानी कि वाज वर में यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए हम बोलते हैं कि वह मेहनती है या फिर वह शांति प्रिय है, वह शांति प्रिय है, यानी कि तो कैसे, अच्छा था में हमको बनाना होगा ना, क्योंकि ये पास्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं वाज वर का, ठीक है। बोलते हैं ना कि वह एक पुलिस ऑफिसर था, वह एक पुलिस ऑफिसर था, तो इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, वह एक पुलिस ऑफिसर था तो वह एक पुलिसमैन था, तो ही वाज अ पुलिसमैन, ही वाज अ पुलिसमैन, ही वाज अ पुलिसमैन, ठीक है। इसको भी हम नेगेटिव में अगर बनाना होगा तो आप नॉट को ऐड, वाज में आप नॉट ऐड कर सकते हैं, ही वाज नॉट अ पुलिसमैन, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आपको पहले वाज यूज करना होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, वाज ही नॉट अ पुलिसमैन। अगर उसको भी नेगेटिव में आपको चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, वाज ही नॉट अ पुलिसमैन। अगर उसमें WH वर्ड भी आप अगर यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे, वाई वाज ही अ पुलिसमैन। अगर उसको भी अगर नेगेटिव में आप चेंज करना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, वाई वाज ही नॉट अ पुलिसमैन। तो एक का 6 आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 6 सेंटेंस में, अगर आप 6 सेकंड में अगर आप 6 सेंटेंस बोल लेते हैं तो हमको लगता है कि आपने प्रैक्टिस करा है, ठीक है। आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बोलते हैं ना कि वह मददगार है, यानी कि सीता मददगार है, बोलते हैं ना सीता, अच्छा थी में हमको बनाना है क्योंकि पास्ट टेंस में पढ़ रहे हैं। सीता मददगार थी या फिर सीता मेरी फ्रेंड थी, सीता मेरी फ्रेंड थी, तो कैसे बोलेंगे, सीता वाज माई फ्रेंड। नेगेटिव में कैसे होगा, सीता वाज नॉट माई फ्रेंड। क्या सीता मेरी फ्रेंड थी, वाज सीता माई फ्रेंड। क्या सीता मेरी फ्रेंड नहीं थी, वाज सीता नॉट माई फ्रेंड। सीता कब मेरी फ्रेंड थी, व्हेन वाज सीता माई फ्रेंड। सीता कब मेरी फ्रेंड नहीं थी, व्हेन वाज सीता नॉट माई फ्रेंड। तो एक का 6 आप बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो योर फादर वाज माई बेस्ट फ्रेंड, माई गुड फ्रेंड बोल सकते हैं। योर फादर वाज माई गुड फ्रेंड, योर फादर वाज नॉट माई गुड फ्रेंड। वाज योर फादर माई गुड फ्रेंड, वाज योर फादर नॉट माई गुड फ्रेंड, वाई वाज योर फादर माई गुड फ्रेंड, वाई वाज योर फादर नॉट माई गुड फ्रेंड। तो एक का 6 आप इस तरह बना सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका
पास्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म ये हो गया आपका। अब इसको हम फ्यूचर फॉर्म में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस सेम फॉर्मूला होगा, उसमें केवल जहां आप यूज एम आर यूज किए थे जो जितने भी स्ट्रक्चर अभी हम बोर्ड पे लिखे थे प्रेजेंट फॉर्म में, उसको अगर आपको फ्यूचर फॉर्म में चेंज करना है, वर्ब टू बी को यूज करना है, तो सारा यूज एम आर के जगह आप प्लेस कर सकते हैं विल बी और शैल बी, ठीक है। जैसे उसका पॉजिटिव सेंटेंस का क्या होगा, पहले हम पास्ट का बना देते हैं। देखिए पास्ट का क्या होगा, वाज वर का 6 सेंटेंस आपका कैसे होगा, तो वाज वर का 6 सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इसको अगर नेगेटिव चेंज करना होगा तो आप यहाँ पे नॉट ऐड करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। इसी तरह आप 6 बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैसे होगा, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच वर्ड में कैसे होगा, डब्ल्यू एच वर्ड का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड यूज करेंगे पहले, उसके बाद क्या होगा वाज वर, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा एडजेक्टिव, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लास्ट आपका डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव